Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do extra questions and answers of temperature and its measurement. पिछले वीडियो में हमने इसका explanation और question answers जो कि बुक के पीछे दिए हुए हैं that we have already seen. Now we will do some extra questions and answers जो कि fill in the blank, short answer types, long answer types that will prepare you for your exam. So question 1 is dash is a reliable measure of hotness or coldness of a body. So answer is temperature. We know that temperature is a reliable measure of hotness, how hot or cold a body is. So friends, please अगर आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. Now question 2, which device measures temperature? So the device which is used to measure temperature, we know it is thermometer. Thermometer से ही हम जो है तापमान को नापते हैं. So answer is thermometer. Answers भी दिए हैं तो you can keep on noting down your answers in your notebook and questions. Name two types of thermometer. तो thermometer जो हमने दो types के देखे हैं बुक में, that is clinical and laboratory thermometers. So two types are clinical. First is clinical, second is laboratory thermometer. Now what scale is used in clinical thermometers? So it is used in the Celsius scale is used in clinical thermometer. So there is Fahrenheit scale, Kelvin scale, but in clinical thermometers we use Celsius scale. What is the normal temperature of a healthy human body on Celsius and on Fahrenheit scale? So on Celsius scale we know it is 37 degrees Celsius and Fahrenheit scale it is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो जब आपके फ्रेंड या आप ये बोलते हैं कि उसको 101 या 102 बुखार है तो दैट मीन्स 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि सेल्सियस है. ओके, सो नेक्स्ट इज question number 6. What substance was traditionally used in thermometers but is now avoided due to toxicity? तो थर्मोमीटर्स के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ सब्सटेंस यूज होता था जो कि अब टॉक्सिक होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया है? दैट इज आंसर इज मर्कुरी. What type of thermometer uses heat sensors to measure the temperature? So that is डिजिटल थर्मोमीटर. तो डिजिटल थर्मोमीटर में हीट सेंसर्स लगे होते हैं जिससे कि टेम्परेचर की रीडिंग डिजिटल फॉर्म में आती है. हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर मेजर्ड इन द आर्मपिट कंपेयर टू द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर? सो ये हमने देखा था चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि जो टेम्परेचर है अगर हम उसको आर्मपिट से मेजर करते हैं तो इट इज़ अबाउट 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल टेम्परेचर. तो अगर हम उसको टंग के नीचे लगा के करते हैं तो दैट विल बी द एक्चुअल टेम्परेचर. क्वेश्चन 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल? सो इन द केल्विन स्केल इट इज के और केल्विन. प्लीज नोट कि यहाँ पे जो है डिग्री केल्विन नहीं आएगा, इट इज ओनली केल्विन. जैसे कि डिग्री सेल्सियस आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, बट केल्विन इज जस्ट रिटन एज केल्विन एंड इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो. क्वेश्चन 10, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? तो अभी हमें पता है, क्वेश्चन ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बॉइलिंग वाटर का कितना टेम्परेचर होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर बॉइल्स एट 100. So while the clinical thermometer का range कितना होता है, that is 35 to 42 only. So it cannot measure boiling water. Question 11, what is the temperature range of a typical laboratory thermometer? तो जो laboratory thermometer होता है उसका range होता है -10 to 110 degree Celsius. Question 12, what liquid is commonly used in laboratory thermometer? So जो liquid use होता है रेड कलर का, that is colored alcohol और mercury. At what temperature does the Celsius scale mark the boiling point of water and the freezing point of water? तो boiling point जो है water का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है और freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस. Now what is the smallest value a laboratory thermometer can read? तो हमें पता है कि उसका रेंज कितना होता है, -10 to 110. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा,
10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन टू द डिजिटल थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज? तो हमें डिजिटल थर्मोमीटर को बिफोर एंड आफ्टर यूज कैसे यूज करना है? व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक? सो आंसर इज दैट वी शुड वॉश द टिप विथ सोप एंड वाटर बिफोर putting it in anybody's mouth or before using it to anybody. So please wash the tip of the thermometer with soap and water. So this finishes the very short answer type questions. Now we move to short answer type questions. Question 1 is, why is it important to measure temperature accurately? तो जो है accurate temperature measure करना क्यों जरूरी है? Because wrong measurements can lead to incorrect conclusions. किसी को बुखार है या नहीं है, या हमें कोई भी experiment करना है based on the temperature, तो अगर हम वो wrong measurements लेंगे तो उससे wrong conclusion निकलेगा and further हमारा wrong ही हम एक्शन उसका करेंगे. तो inaccurate measure of body temperature may lead to suggest a fever when there is no fever, and when there is fever it may suggest no fever. तो अगर मान लो फीवर है तो ऐसा लगेगा कि फीवर नहीं है अगर रॉन्ग मेजरमेंट कर लिया है, और फीवर नहीं है तो भी ऐसा लगेगा कि फीवर है. तो अकॉर्डिंगली जो हमारा डिसीजन होगा कि मेडिसिन कितना देना है या नहीं देना है, दैट विल डिपेंड ऑन करेक्ट मेजरमेंट. So it is very important to measure correctly. How does a digital clinical thermometer work? तो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, हीट सेंसर्स लगे होते हैं एंड इट डिस्प्लेज द टेम्परेचर डिजिटली. तो ये जो है डिजिटली टेम्परेचर को डिस्प्ले करता है. इट रन्स ऑन बैटरीज एंड प्रोवाइड्स एन इजी टू रीड डिजिटल डिस्प्ले. तो इसके अंदर जो है बैटरी लगी होती है टू शो द डिस्प्ले, एंड देर इज नो रिस्क इन यूजिंग डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. दैट वाज जो कि पहले जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो नॉन डिजिटल थे उसमें मर्कुरी थर्मोमीटर थे, उसमें मर्कुरी या अल्कोहल होता था, तो जो रिस्क उनके साथ था, बिकॉज मर्कुरी इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, सो दैट टाइप ऑफ रिस्क इज नॉट एसोसिएटेड इन डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. What is the normal range of human body temperature and why might it vary? The normal range of human body temperature is around 37 degrees Celsius, but can vary slightly due to factors like age, time of day and activity level. तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं, या फिर अगर ज़्यादा गर्मी का टाइम है, या फिर अगर कोई एजड बंदा है, तो उनका टेम्परेचर विल बी प्लस और माइनस देन अ चाइल्ड, और जिसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है या फिर टाइम ऑफ डे, उसका अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 के अराउंड रहता है. अ परफेक्ट हेल्दी पर्सनस टेम्परेचर माइट बी अ बिट हायर और लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस. Question 4. Why is it necessary to wash the tip of the thermometer before and after use? तो हमें जो टिप ऑफ थर्मोमीटर है वो बिफोर एंड आफ्टर यूज़ किस लिए मेजर करनी चाहिए, वॉश कर लेनी चाहिए? क्योंकि टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग्स. तो एक तो जो जर्म्स हैं वो साफ़ हो जाएं जब हम उसको सोप से वॉश करेंगे, और वो एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करेगा. इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाइजीन स्पेशली व्हेन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो दैट इज़ वाई वी वॉश द टिप ऑफ द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़. Question 5. How do non-contact thermometers work and what are their benefits? तो मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं जो बिना टच के ही जो है जस्ट वी टेक इट क्लोज टू द नियर द बॉडी एंड दे मेजर द टेम्परेचर, जो कि कोरोना वायरस के टाइम पे दे वर इफेक्टिवली यूज्ड. तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स मेजर टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस यूजिंग इंफ्रारेड सेंसर्स. So they reduce the risk of spreading infections and are particularly useful in medical settings for quick and safe temperature checks. क्योंकि जो कम्युनिबल डिजीजेज हैं जो कि छूने से ही फैल जाती हैं, छुआछूत की बीमारियां हैं, उनको सेफली जो है मेजर कर सकते हैं और उनसे बिल्कुल भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का डर नहीं रहता इफ़ वी यूज़ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स. What did people use to detect fever
बिफोर थर्मोमीटर्स वर डेवलप्ड। तो थर्मोमीटर डेवलप होने से पहले पीपल यूज टू डिटेक्ट फीवर, कैसे बुखार चेक करते थे, बाय चेकिंग द पल्स रेट एज फीवर अफेक्टेड। तो जो है हम हाथ पकड़ के हकीम वगैरह या डॉक्टर्स जो थे वो चेक करते थे कि उनकी नब्ज कितनी चल रही है। तो हाउएवर दिस मेथड वाज नॉट वेरी रिलायबल सिंस कंडीशंस अदर देन फीवर कुड आल्सो इन्फ्लुएंस द पल्स रेट। तो जो पल्स रेट होती है वो वेरियस कारणों से बढ़ या घट जाती है, या आज आप एंग्शियस हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, या फिर रनिंग करके आए हैं, या फिर और कोई मेंटल जो प्रॉब्लम है उससे भी पल्स रेट इफेक्ट हो जाती है। तो फीवर इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई पल्स रेट गोज अप और डाउन। तो इसीलिए जो है इट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग फीवर। Question number 7. How do you measure temperature using laboratory thermometer? What precautions should be taken while when using a laboratory thermometer? तो जो अगर हम टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से करेंगे मेजर, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। आप अब मेरा पिछला वीडियो जो लिंक्ड वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है। To measure thermometer with a laboratory thermometer, immerse the bulb in the substance without touching the sides or bottom of the container। तो जो आपका कंटेनर या बीकर है जिसमें आपका वाटर या जो भी आपका सब्सटेंस है जिसका आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो थर्मोमीटर को उसकी बाउंड्रीज को टच नहीं करना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली एंड रीड द टेम्परेचर व्हाइल इट इज स्टिल इमर्स्ड। तो उसको वर्टिकली डाल के एंड देन when it is already immersed in the substance, then only you have to measure the temperature. Ensure that your eye level is in line with the liquid column in the thermometer। और जो आपका eye का level है it is in line with the liquid column in the thermometer। So these are the precautions that we use when using a laboratory thermometer to measure temperature। Question number 8. How is the Kelvin scale related to the Celsius scale? तो हमें ये फॉर्मूला पता है, the Kelvin scale is related to Celsius scale by a formula. So temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 273.15. Question 9. What is the role of weather stations in measuring air temperature? तो weather stations जो हैं they monitor air temperature along with other parameters to gather data used for weather forecasting। तो वो air temperature एक तो यूज़ करते हैं, right? air temperature का हमने टॉपिक पढ़ा था और हमने मेजर भी किए थे वेरियस temperatures over days in particular city। तो this data collection helps predict weather patterns and inform the public about daily temperature variations and climate trends। तो हमने पिछले वीडियो में ये एक्सरसाइज किया था जिसमें हमने टेबल बनाया था और 10 दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, और उसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखी थी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है उसी हिसाब से आगे का प्रडिक्शन भी किया जाता है। तो यही जो तरीका है दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन वेदर स्टेशंस जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं कहीं पे हैं। तो वो लोग प्रेडिक्ट करने में भी या फोरकास्ट करने में भी इसी तरीके से दे predict the weather। What smallest value of temperature can we measure on a laboratory thermometer? तो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है कितना हम नाप सकते हैं, तो दिस डिपेंड्स ऑन द स्केल मार्किंग्स ऑफ द ऑन द थर्मोमीटर। तो कई स्केल्स जो होते हैं वो 2 की डेविएशन में होते हैं, जैसे कि 5 स्मॉल लाइंस होती हैं मार्क बिटवीन 10 एंड 10 to 20 के बीच में 5 लाइंस हैं, या फिर 20 to 30 के बीच में भी 5 लाइंस हैं। तो इसलिए उसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो 2 डिग्री होगा, राइट। 10 के बाद वो सीधा 12 नाप रहा है, 12 के बाद 14 मेजर कर रहा है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू उस केस में क्या हो जाता है 2 डिग्री। लेकिन व्हेन अ थर्मोमीटर हैज 20 स्मॉल लाइंस, मान लो 10 और 20 के बीच में हैं जो है 20 स्मॉल लाइंस हैं, इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द thermometer can measure is 0.5 degrees। So it depends on the marking on the thermometer। Long answer type questions. Describe the differences between thermometers in terms of their use and range। So we know that there are two types of thermometers, clinical and laboratory। तो हमने दोनों के differences लिखने हैं। So clinical thermometers are designed specifically for measuring human body temperature। तो ये specifically human body temperature नापने के लिए ही use होता है। Whereas laboratory thermometers are used for scientific purposes।
क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैव अ लिमिटेड रेंज फ्रॉम अराउंड 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज 37, तो 35 से 42 के बीच में ही इट मेजर्स द टेम्परेचर विच इज सफिशिएंट फॉर डिटेक्टिंग फीवर्स एंड अदर हेल्थ रिलेटेड टेम्परेचर वेरिएशंस। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर a much wider range of temperatures usually from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो अगर मान लो पानी का टेम्परेचर नापना है या फिर बर्फ का टेम्परेचर नापना है तो वी हैव टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्योंकि वो उसकी रेंज में आएगा। अदरवाइज क्लिनिकल थर्मोमीटर तो 35 से 42 डिग्री का टेम्परेचर ही नाप सकता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज टू टेक अ रीडिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस और समटाइम्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल या फिर सेल्सियस स्केल पे ही बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, वेर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज टू टेक रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और ऑन केल्विन स्केल। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे नहीं लेता है, दैट इज़ ऑन सेल्सियस और केल्विन स्केल। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कैन बी मर्कुरी थर्मोमीटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स और नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हैं वो डिजिटल हो सकते हैं, मर्कुरी हो सकते हैं या फिर नॉन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। वेरेज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज कलर्ड एल्कोहल दैट इज रेड इन कलर और मर्कुरी एज लिक्विड्स दैट एक्सटेंड टू शो द टेम्परेचर रीडिंग। सो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें मर्कुरी ही यूज होता है। So these are the differences between clinical and laboratory thermometers. Question 2. Explain why digital clinical thermometers are preferred over earlier mercury thermometers. So before answering these questions, friends, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it, because I need a lot of motivation from your side to continue making good videos. Okay, so please do subscribe, like and share my channel with your friends also. Now question 2, explain why digital clinical thermometers are preferred over earlier mercury thermometers. The mercury thermometers have mercury in their thin glass tube inside. Mercury was used because of its shining and good expansion property. तो mercury का क्या होता है ना कि it is a very shiny material and it expands when it is exposed to a high temperature. But mercury is highly toxic substance when which is difficult to dispose of इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो अगर मान लो गलती से थर्मोमीटर गिर गया है और मर्क्यूरी उसमें से निकल गया है तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक इट अप एंड इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसलिए जो क्या है कि डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो प्रेफर किए जाते हैं ओवर मर्क्यूरी थर्मोमीटर बिकॉज दे डू नॉट यूज मर्क्यूरी। तो डिजिटल थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी नहीं होता है, उसमें हीट सेंसर्स लगे होते हैं to detect the body temperature, and the number on display on the digital thermometer are easier to read। और उसमें जो नंबर दिया आता है वो एक्यूरेट और इट इज़ वेरी इजी टू मेजर। देन आपका जो आई का है वो इन लाइन विद द लाइन ऑफ द लिक्विड है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, इट सिंपली गिव्स आउट कि आपका जो टेम्परेचर है वो इतना है। Question 3. Explain the principle behind Kelvin scale and its significance in scientific measurement. So scientifically, there is no limit on the higher temperature that can exist. The highest temperature known is about 15 million degrees Celsius at the core of the SUI. There can be more celestial objects having higher temperatures. The lower temperature that can exist till date known to the scientists is close to minus 273 degrees Celsius. So on the Kelvin scale, the lowest temperature of minus 273 degrees Celsius is taken as 0 Kelvin. तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को ही 0 केल्विन माना जाता है। तो 0 केल्विन इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो जो है इसीलिए इस फॉर्मूला में अगर आप देखें, इस फॉर्मूला में टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। तो दिस इज द principle behind the Kelvin scale. Next question is describe the process and precautions necessary for using a laboratory thermometer. तो हमें क्या क्या precautions use करनी है when we are handling laboratory thermometer. तो thermometer should be handled carefully, avoiding any impact that could cause breakage. तो एक तो हमें इसको ध्यान से रखना है, उसको टूटने नहीं देना है. The bulb of the thermometer should be immersed in the liquid of which the temperature is being measured. तो जो है वो बल्ब है वो पूरा लिक्विड में इमर्स होना चाहिए। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड नॉट टच द साइड्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर। उस बीकर को टच नहीं करना चाहिए बल्ब जिसमें टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। द थर्मोमीटर मस्ट बी हेल्ड वर्टिकली, ठीक है। तो द टेम्परेचर शुड बी रेड कीपिंग द आई इन लाइन विद द लेवल लिक्विड इन द
thermometer. तो हमें कैसे रीडिंग लेनी है, that we have to be very very cautious कि जो है आई का लेवल जो है वो लिक्विड के लेवल से मैच होना चाहिए. The reading of the temperature must be taken immediately after the level of liquid in the column of the thermometer stops moving. जैसे ही जो है लिक्विड मूव करना बंद कर देता है, इमीडिएटली हमें रीडिंग ले लेनी है. ऐसे नहीं है कि हमने उसको रख दिया एंड देन वी आर स्पेंडिंग सम टाइम हियर एंड देयर एंड देन वी आर नोटिंग, तो उससे जो है रीडिंग आपकी डिस्ट्रैक्टेड आएगी. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड में चेंज इफ वी होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग, क्योंकि बिफोर टेकिंग रीडिंग, आफ्टर टेकिंग द रीडिंग व्हाइल द थर्मोमीटर स्टिल इमर्स्ड, इट शुड बी क्लीन एंड स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू मेंटेन इट्स एक्यूरेटी एंड लॉन्गेविटी. तो उसको रखने का भी सही तरीका और सही ढंग होना चाहिए ताकि वो अपना एक्यूरेट मेजरमेंट देता रहे और लंबे टाइम तक यूज़ होता रहे. These are the precautions that we should take to when you are using a laboratory thermometer. Question 5. Describe how air temperature data is used in making weather forecast. तो ये हमने एक्सरसाइज किया था पिछले वीडियो में. तो air temperature data is an important concept in weather forecasting as it influences atmospheric pressure, humidity and wind patterns. तो क्या है ना, आज कितना एयर टेम्परेचर है, इट विल फर्दर इन्फ्लुएंस कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, विंड कैसे चलेगी, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी. तो टेम्परेचर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग वेदर स्टेशंस, satellites and weather balloons are collected. This data is fed into computer models that analyze atmospheric conditions. तो ये we have developed various software जो कि analyze करते हैं कि atmospheric condition कैसी रहेगी. तो accurate temperature measurements allow forecasting of changes in weather such as cold fronts, heat waves and rains. So this information is very useful for agriculture, transportation and public safety. कि जैसे अभी पीछे एक वेस्ट बंगाल में तूफान आया था, दैट वाज नोन एज दाना. तो उसका जो है प्रिकॉशन हमने पहले ही ले ली थी. वाई? बिकॉज वेदर वाज ऑलरेडी फोरकास्टेड. तो कितने सारे गांव और कितने सारे लोगों को वहाँ से हमने डिस्प्लेस कर दिया था to and we moved them to safer places because of the weather forecast that was already known. तो इस तरीके से जो है एयर टेम्परेचर डेटा को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट. Question 6. Name the 3 scales of measuring temperatures known to you. Write down the correct ways to write the names and units of these scales. तो कौन कौन से scales हैं? The 3 scales of measuring temperature are Celsius, Fahrenheit and the Kelvin. Okay, so the names of temperature scale, Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale start with the capital letter. तो ये जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. For the units for temperature, degree Celsius and degree Fahrenheit, the word degree starts with the lowercase letter while Celsius and Fahrenheit start with a capital letter. तो डिग्री अगर हम लिखेंगे तो that will be smaller alphabet. The unit Kelvin starts with a lowercase letter. The symbols of all units are capital letters. तो अगर हम सिर्फ C, F या K लिखेंगे तो that should be in capitals. The degree is not written with K. तो जो है डिग्री जो है वो C और F के साथ ही लिखा जाता है, K के साथ नहीं लिखा जाता है. A full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence. तो अगर सेंटेंस का एंड कर रहे हैं तब तो फुल स्टॉप आएगा, बट अदरवाइज it should not be ending with a full stop. While writing the temperature, a space is left between the number and the unit. तो ये तो हमें पता ही है कि कोई भी यूनिट अगर हम लिख रहे हैं, इवन मीटर, किलोमीटर और इवन टेम्परेचर, तो नंबर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक स्पेस आएगा. For temperatures more than 1 degree, we use the plural of degree, that is degrees, while writing the full form of the unit. तो अगर हम more than 1 degree बता रहे हैं तो it should be spelled as degrees, not degree. Okay. Last question is explain the role of Anna Mani in the field of meteorology and also her contribution to temperature measurement. तो Anna Mani जो साइंटिस्ट थी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, अपने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो she was a great Indian scientist and she was known as weather woman of India. She was known as weather woman of India. This we should remember. So she made significant contributions to meteorology by developing and building a large number of weather measurement इंस्ट्रूमेंट्स. तो उन्होंने बहुत तरीकों के वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे. हर वर्क रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स. तो उसकी वजह से जो है इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गया वेदर नापने के लिए.
and India has grown to lead the world in renewable energy due to the contributions of Anna Mani in the field. तो उनके contributions की वजह से ही renewable energy के field में इंडिया जो है विश्व को लीड कर रहा है. This was the role of Anna Mani in the field of meteorology. So with this, friends, we come to the end of this chapter. We have studied line by line explanation in the previous videos, and we have also seen in text question answers in the previous video, and these were the extra question answers. तो ये तीनों आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आई क्लेम कि इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, एंड इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन योर exams. Okay, so to score well and to ace your marks in your exam, please see the detailed videos, and also please like and subscribe my channel, because if you don't like and subscribe, then I will also feel demotivated to so I need some motivation to make good videos. So please like and subscribe to the channel, and with this I wish you a very happy learning, and have a good day. Bye bye.